حسين ونسيم وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنا كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. صدق رسوله النبي الكريم الأمين المتين الرؤوف الرحيم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وذرتها. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میں کو کئی خاص موضوع تو کہنے دیتا گیا شان اولیاء، رسولوں کے رہبر، نبیوں کے افسر، نور مجسم، رسول محتشم، شاہ آدم و بنی آدم، حضور سیدی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جب دو مسلمان آپس میں اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے وقت میری ذات پہ درود پڑھتے ہیں، اللہ ان دونوں کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ملنا. جس طرح مسجد کے اندر نماز کے بعد نمازی حضرات آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی کے ماموں کا بیٹا یا چاچوں کا بیٹا نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی کاروباری حوالے سے آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، ایک اللہ کی رضا کے لیے محبتاً الفتاً جو ہے لوگ آپس میں ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ملنا ہے کہا یہ اللہ کی رضا کے لیے ملنا ہے. اسی طرح بندہ کسی اور سے ملتا ہے اور کوئی کام نہیں ہے، بس خالصاً اللہ کی رضا کے لیے مل رہا ہے کہ میرا مسلمان بھائی ہے. فرمایا جب مصافحہ کرتا ہے اور آقا کی ذات پر درود پڑھتا ہے، اللہ ان دونوں کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا. آقا علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی کیسی برکتیں ہیں. کہا دو بندے آپس میں اگر مصافحہ بھی کرتے ہیں، حضور کی ذات پر درود پڑھ لیتے ہیں، اللہ ان کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رہے کہ اس طرح کی جو فضیلتیں ہوتی ہیں کہ جس میں کوئی بندہ اتنے بار درود پاک پڑھ لے تو اللہ 80 سال کے گناہ بخش دے گا، یہ کر لے تو اللہ اتنے سال کے گناہ بخش دے گا، مصافحہ کرتے ہوئے درود پڑھ لے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. تو اس گناہ سے کیا مراد ہے؟ ایک بندے نے کسی کا 2 لاکھ روپے دبایا ہوا، ایک عرصے سے دے نہیں رہا، ایک بندے کی اس نے زمین دبا رکھی ہے، ایک کا حق مار رکھا ہے، اور تم کہو کہ اگر ہاتھ ملا لے اور درود پڑھ لے اللہ گناہ معاف فرما دے گا. کہ اس کا مطلب یہ ہے وہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے؟ نہیں. یہاں پر گناہ کی 2 قسمیں ہیں، گناہ کبیرہ صغیرہ. گناہ کبیرہ وہ اس طرح معاف نہیں ہوتے، اس طرح کے اعمال سے، اس طرح کے معاملات سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق آپ نے اس طرح دبایا، اس انداز میں اس کی نافرمانی کی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ خالصاً اللہ کا حق ہے، اس صورت میں توبہ تم پر لازم ہے کہ توبہ بھی کرنی ہے. اور اگر اس حق کا تعلق کسی بندے سے ہے تو اس سے معافی بھی مانگنی ہے. مثال کے طور پر کسی نے ایک بندے کا 5 لاکھ دبا لیا ہے اور 5 سال کا عرصہ گزر گیا. اب 5 سال کے بعد اس کو یاد آیا کہ یار جو میں نے کیا تھا وہ غلط کیا تھا. اب یہ خدا سے معافی مانگے یا بندے سے معافی مانگے؟ اب حکم یہ ہے کہ پہلے تو بندے سے معافی مانگ. اللہ بھی اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک تجھے وہ بندہ معاف نہیں کرے گا. اور معافی کے ساتھ تلافی بھی لازمی ہے کہ جس کا آپ نے حق دبایا ہے اس کو آپ نے رقم بھی واپس کرنی ہوگی. تو اس طرح کی جو فضیلتیں ہوتی ہیں اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ گناہ صغیرہ مراد ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ صغیرہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن جو گناہ کبیرہ ہیں وہ جب تک وہ حق ادا نہ کیا جائے تب تک وہ معاف نہیں ہوتے. اب جو حق ایسا ہے کہ جس میں خالصتاً اللہ کا حق ہے، مثال کے طور پہ اللہ کا حق تھا کہ آپ نے شراب کو ہاتھ نہیں لگانا، شراب پینی نہیں ہے، یہ اللہ کا حق ہے نا ہم پر. شراب کو حرام کس نے کیا؟ بندے نے کیا؟ نہیں، اللہ نے کیا ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ شراب بندے پر کیا ہے؟ حرام ہے. بندہ شراب نہیں پی سکتا. اب اگر پی لی ہے تو آپ کسی بندے سے معافی مانگنی پڑے گی؟ نہیں، اب اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی کہ وہ شراب نہیں پینی تھی، اللہ نے منع کیا تھا، حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا آپ پر کہ شراب کو نہیں پینا تھا، لیکن بندے نے پی لیا تو اب توبہ بھی کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے اور رو کر گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہے. یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. آقا علیہ السلام کی ذات درود پاک پڑھنے کے حوالے سے اور بھی بے شمار
शुमार फजाइल हैं कि जिनसे कुतुब अहदीस भरी पड़ी हैं और कई मुहद्दिसीन कराम ने पूरे पूरे अब्वाब बांधे हैं आका अलैहिस्सलाम की जात पर दुरूद पाक पढ़ने के हवाले से। एक बहुत ही प्यारी रिवायत है, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने ना जन्नत में एक दरख्त पैदा फरमाया है, उसका जो फल है ना उसकी कैफियत को अहदीस में बयान किया गया। कहा वो फल कैसा है? का सेब से बड़ा है, अनार से छोटा है, मक्खन से ज्यादा नरम है, शहद से ज्यादा मीठा है, और वो जो दरख्त है ना उसके तन्ने सोने के हैं और उसकी जो शाखें हैं वो चांदी की हैं और उसके जो पत्ते हैं वो जबरदस्त हैं। आका से पूछा गया आका वो फल कौन खाएगा, ये शान अल्लाह किसको अता फरमाएगा? कहा कि जिसने दुनिया में कसरत से मुस्तफा पे दरूद पड़े होंगे अल्लाह वो फल उसको अता फरमाएगा। और वो फल वो कहाँ है, वो दरख्त कहाँ है? कहा वो जन्नत में है। आखिरकार बंदा जन्नत में जाएगा तभी वो उस दरख्त का फल खाएगा। तो आका अलैहिस्सलाम की जात पर कसरत से दरूद पाक पढ़ना या आशिकों का वतीरा भी रहा है और हमें भी चाहिए कि कसरत से आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर दरूद पाक पढ़ते रहा करें। एक मरतबा शौक व मोहब्बत के साथ मिलकर पढ़ लीजिए सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के अंदर ना अंबिया कराम को भेजा। जब इंसान अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया उस दौर से जो है वो एक सिलसिला चला, हर नबी के बाद एक नबी आता रहा। आदम अलैहिस्सलाम के बाद अंबिया का आना रहा, उसके बाद अंबिया आते रहे, हर दौर में अंबिया कराम आते रहे। आका अलैहिस्सलाम का जो दौर है ना ये आखिरी दौर, आका अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आका के बाद कोई नबी नहीं, इस उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं। इस उम्मत पर जो किताब नाजिल हुई आका अलैहिस्सलाम के कल्बे अत्हर पर जो कुरान करीम नाजिल हुआ, इस कुरान के बाद कोई किताब नहीं, इस उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं, आका के बाद कोई नबी नहीं। अब मौला तूने अंबिया का सिलसिला तो बंद कर दिया है, हर नबी के बाद एक नबी आता रहा, अब अंबिया का आना बंद हो चुका। अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी इस कायनात में आ चुके, आका के बाद कोई नबी नहीं आने वाला, आका के बाद कोई नबी नहीं आने वाला। मौला अब दुनिया वालों तक दीन कौन पहुंचाएगा, दुनिया वालों को इस्लाम कौन सिखाएगा? कहा मेरा वादा है अंबिया तो नहीं आएंगे, कयामत तक औलिया आते रहेंगे, कयामत तक औलिया आते रहेंगे। आप देखें आका अलैहिस्सलाम ने जिस अंदाज में दीन फैलाया है अपनी मिसाल आप है। आका अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़कर देखे ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बंदा हैरान हो जाता है। आका अलैहिस्सलाम ने इतनी सऊबतें तकलीफें मशक्कतें बर्दाश्त की हैं। आका अलैहिस्सलाम की 1 साल से लेकर 63 साल जिंदगी सब्र और शुक्र से लबरेज है, भरी पड़ी है। आप देखें आका पैदा नहीं हुए, आका के वालिद का इंतकाल हो गया। आका अलैहिस्सलाम 6 साल की उम्र में पहुंचे, वालिदा का इंतकाल हो गया। 8 साल की उम्र में पहुंचे, आपके मुशफिक और मेहरबान दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। 10 साल की उम्र में आप अपने चचा की उसके अंदर चले गए, कफालत के अंदर चले गए, वहां पर एक अरसा तक रहे। उसके बाद आप तिजारत के मामलात में आ गए, आपके चचा जनाब अबू तालिब आपको लेकर जाया करते थे, तिजारत लेन देन आपने सीखा, ये सारे मामलात होते रहे। आका अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल थी कि आका अलैहिस्सलाम की दोस्ती लग गई सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। उसके बाद तिजारत का मामला आगे बढ़ता रहा। आका अलैहिस्सलाम की 25 साल जिंदगी में चले जाएं, 25 साल आका अलैहिस्सलाम की उम्र होती है। हज़रत सैयदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये मक्के की और कुरैश की बड़ी पाक बाज खातून थी और बड़ी नेक खातून थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी इस्लाम नहीं लाई, अभी ये मामला नहीं हुआ। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक जगह शादी की, आपके शौहर का इंतकाल हो गया, दूसरी जगह निकाह किया, उनका भी इंतकाल हो गया। अभी आपके पास कुरैश के सरदारों ने निकाह के पैगाम भेजे कि हम आपसे निकाह करना चाहते हैं, लेकिन आपने सारे के सारे पैगाम ठुकरा दिए कि अभी मैंने निकाह नहीं करना। आपको पता चला कि मक्के के अंदर एक नौजवान है जो बड़ा पाकबाज है, उसकी सीरत आला है, उसका किरदार आला है। आका अलैहिस्सलाम के बारे में पता चलता है। सैयदा खदीजा अपने गुलाम को भेजती हैं, मजीद मालूमात करवाती हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक ऐसा नौजवान चाहिए था जो आपके कारोबार को संभाले। आका अलैहिस्सलाम का पता चला, इन्होंने पैगाम भिजवाया, आका अलैहिस्सलाम ने कबूल कर लिया। अब आका अलैहिस्सलाम को इस अंदाज में जो है, आका अलैहिस्सलाम इस अंदाज में इस मामलात को लेकर के चले कि जब आप कारोबारी इनका जो जितना भी बिजनेस था वो आपने संभाला, आप लेकर गए, मुल्क शाम गए और भी काफी सारे ममालिक के अंदर गए। आका अलैहिस्सलाम के साथ जो है वो एक गुलाम भी था, किनका? हजरत सैयदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। हजरत सैयदा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का गुलाम भी था। वो आका अलैहिस्सलाम के साथ रहा, आका का सारा किरदार देखता रहा, अंदाज देखता रहा, आका अलैहिस्सलाम की सीरत के खदोखाल भी देखता रहा। जब वो वापस आया ना, उसने आकर बताया, सैयदा खदीजा एक टीले पर बैठकर इंतजार कर रही थी, आका आ रहे थे, देखा कि आका के सर पर बादलों ने साया किया हुआ है।
आका अलैहिस्सलाम के सर पर बादलों ने साया किया हुआ है और एक नूर आका अलैहिस्सलाम के सर पर चमक रहा है। जब करीब आए तो आपका जो गुलाम था ना, उसने बताया कि जिनके साथ में गया था ये तो बड़े आला किरदार के मालिक हैं, ये तो बड़ी शानों वाले हैं, ये तो बड़ी अजमतों वाले हैं। ऐसी ऐसी बातें बयान की हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो पहले भी काफी इंप्रेस थी और ज्यादा मुतासिर हो गई जब इनको पता चला आका अलैहिस्सलाम के किरदार के बारे में। फिर जो है इन्होंने निकाह का पैगाम भेजा। जब निकाह का पैगाम भेजा तो जनाब अबू तालिब जो आका अलैहिस्सलाम के चचा थे उन्होंने कबूल किया। अब आगे चलते चले जाएं। 30 साल की उम्र आपके यहाँ बेटी की विलादत होती है, 35 साल की उम्र में बेटी की विलादत होती है, 37 साल की उम्र में बेटी की विलादत होती है। इस तरह 39, 40, 41 साल यहाँ पर आका अलैहिस्सलाम के बेटों की विलादत हुई। हजरत कासिम की विलादत हुई, हजरत इब्राहिम की विलादत हुई। इस तरह जो है वो तवल्लुद का सिलसिला चलता रहा, औलाद होती रही। अब इसके बाद देखें, ये जो मैं बताना चाह रहा था ना, वो चंद बातें ये थी। आप देखें आका अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी सब्र और शुक्र से लबरेज है। आका की सारी औलाद सिवाय हजरत फातिमा के सारी औलाद का आपकी आंखों के सामने इंतकाल हो गया। आपकी आंखों के सामने इंतकाल हो गया। आपकी बेटी सैयदा ज़ैनब, आपकी बेटी सैयदा रुकैया, उनका आपकी निगाहों के सामने इंतकाल हुआ। आपकी बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका आपकी निगाहों के सामने इंतकाल हो गया। आपके बेटे हजरत कासिम का इंतकाल हो गया। आपके बेटे हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया आपकी आंखों के सामने। लेकिन अल्लाह की बारगाह में ये नहीं कहा मौला मैं तो वो हूँ, तूने मेरी खातिर पूरी कायनात बनाई है और मेरे साथ ये मामला नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है मौला जैसे तू राजी वैसे तेरा महबूब राजी। ये आका अलैहिस्सलाम का सबर था। सारी औलाद का आपके सामने इंतकाल कर जाना। आका अलैहिस्सलाम की आंखों से अश्क तो रवा होते थे, लेकिन आका अलैहिस्सलाम सबर और शुक्र के साथ आपने सारी जिंदगी गुजार दी है। क्या नहीं किया था काफिरों ने आपके साथ? कौन सा ऐसा जुल्म था जो आप पे ना ढाया गया हो? आप देखें ताइफ की गलियों में लोगों ने आपको पत्थर मारे, आका अलैहिस्सलाम लहूलुहान हो जाते, आप गिर जाते, वो आपको उठाते, जब आप उठने के करीब होते फिर गिरा देते। आपके पीछे उबाश कुंडे लगाए गए, लेकिन मजाल है कि आका अलैहिस्सलाम की जबान पर शिकवे का एक लफ्ज भी आया हो। आज हम देखें हमारा हाल क्या है। हमारे यहाँ तो बड़ी खुशियां भी हैं और हम जो है वो दुख के अंदर तो रब को याद करते हैं, सुख में रब को याद नहीं करते। ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है। हम दुख के अंदर रब को याद करते हैं। हमारे यहाँ कोई मर जाता है तो कुरान खोल लेते हैं, लेकिन कोई खुशी का मौका है तो कुरान भी कोई नहीं खोलता। ये हमारी सोसाइटी का ऐसा अलमिया है जिसको हर आम और खास मानेगा कि हमारे यहाँ कुरान से भी हमने मरना सीखा है, कुरान से जीना नहीं सीखा। लोग कुरान भी तब खोलते हैं जब घर में कोई मर जाए, तब लोगों ने कुरान खोला। मियां तूने कुरान से मरना तो सीखा, कुरान से जीना किसी ने न सीखा। और करें आज हमारा हाल क्या है, आका के सब्र और शुक्र का लेवल क्या था। आका अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी सब्र और शुक्र के साथ गुजार दी। आज हमारे पास अगर इक़्तिदार हो, किसी से बदला लेने की ताकत हो, हम बदला ले लेते हैं। लेकिन आका अलैहिस्सलाम का अंदाज क्या था? आपके पास फरिश्ते आ गए, आका आप हुक्म फरमाएं, हम इन पर पत्थरों का अज़ाब नाज़िल कर देंगे। आका आप हुक्म कराएं, हम इनको तहस तहस करके रख देंगे। आका क्या इरशाद फरमाया करते? फरमाया नहीं, मुझे इनसे नहीं, मुझे इनकी नस्लों से ईमान की उम्मीद है, मुझे इनकी नस्लों से ईमान की उम्मीद है। आका दुआ करते थे अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून, मौला मेरी कौम को हिदायत दे, ये नहीं जानती कि मैं कौन हूं। आका अलैहिस्सलाम के साथ कौन सा ऐसा जुल्म था जो ना किया गया? लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने दीन को फैलाया। आका अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया। इब्न मिशकम यहूदी की बीवी ने जब गोश्त के अंदर जहर मिला के आका अलैहिस्सलाम को दिया ना, आका अलैहिस्सलाम के साथ एक और सहाबी भी थे जिन्होंने वो गोश्त खाया था, उनका इंतकाल हो गया था, वो शहीद हो गए। लेकिन आका को रब ने महफूज रखा। लेकिन इसी जहर ने औध किया था, एक वक्त आया था, इसकी वजह से आका अलैहिस्सलाम की तबीयत मजीद खराब हो गई थी और इसी वजह से आपका विसाल भी हुआ। ये भी कौल मिलता है। अंदाजा लगाएं आका अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी सब्र और शुक्र के साथ गुजारी है। आज हम देखें हमारा सब्र कहाँ है और हमारा शुक्र कहाँ है। जिस तरह माशाअल्लाह हमारे सबूरुल ऐन भाई की शादी है, बहुत प्यारा एक लोगों को दर्श भी जाएगा कि शादी के दिन भी इस तरह की महफिल सजाना, आका अलैहिस्सलाम के फरामीन सुनाना, इस तरह की शादियां फिर कामयाब भी होती हैं। अल्लाह ऐसी शादियों में बरकतों का नज़ुल फरमा देता है। तो हमारा भी ये जहन बन जाए कि हमारे यहाँ भी जब शादी ब्याह का मौका हो तो हम भी इस तरह की महफिल सजाएं जहां पर कुरान का तज़किरा भी हो, आका अलैहिस्सलाम की सीरत का तज़किरा भी हो और बुजुर्गान दीन के अक़वाल का तज़किरा भी हो, ताकि जब ये बरकतें हमें शुरू दिन से मिलेंगी तो इंशाअल्लाह ये एक नई जिंदगी का आगाज होता है। तो अल्लाह उस जिंदगी के अंदर बरकतें डाल देता है, उसमें रहमतों का नज़ूल हो जाता है। और जब रहमतों की बिरखा बरसती है तो वहां पर जो है वो लानतें नहीं उतरती, वहां पर कोई बेबरकती का मामला नहीं होता, वहां पर इस तरह की परेशानी और दुखों का डेरा नहीं होता। अल्लाह वो घर खुशियों से भर देता है। तो हमें भी चाहिए कि खुशी के मौका पर अपने रब को याद करें, आका अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ें। आज हम देखें हमारा शुक्र कहाँ है। शेख सादी रहमतुल्लाह
रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आज वो बंदा ना जिसके पास सिर्फ बाइक है, कार नहीं है, वो भी नाशुक्री कर रहा होता है। यार फलां के पास तो कार है, मेरे पास सिर्फ मोटरसाइकिल है, मेरे पास तो समझो कुछ भी नहीं है, फलां के पास तो कार है। ओ मियां तो साइकिल वाले को देखना, अल्लाह ने तुझे मोटरसाइकिल दिया है, वो साइकिल वाले के पास तो ये भी नहीं है। हमें हक तो ये बनता था कि दुनिया के मामले में हम अपने से नीचे को देखते, ताकि हमारे दिल में शुक्र का जज्बा बेदार होता कि आज हमारे पास सब कुछ, फलां के पास ये भी नहीं। लेकिन हमारा अंदाज ये है, हम दुनिया के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखते हैं। हालांकि हुक्म ये है कि दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखो। तुम 5 नमाजें पढ़ते हो तो 4 वाले को ना देखो, उसको देखो जो तहज्जुद भी अदा करता है। कहा दीन के मामले में ऊपर वाले को देखो तो नेकियों का जज्बा उभरेगा, और अगर दुनिया के मामले में देखना है तो अपने से नीचे वाले को देखो, तुम्हारे दिल में शुक्र पैदा होगा, तुम्हारे दिल में शुक्र का जज्बा अगर लेगा। आज हम गौर करें, हम जो है वो अब कोई भी मामला देख ले, हमारे पास आंखें हैं, हाथ सलामत हैं, हवा सलामत है, ये अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है। भले हमारे पास और कुछ भी ना हो ना, शुक्र अदा करने के लिए ये सारी आजाद ही हमारे लिए काफी है। वरना एक चक्कर अस्पताल का भी लगा लो, कई आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके अकाउंट में करोड़ों अरबों खरबों की रकम मौजूद है, लेकिन वो अपने हाथ से खुद खाना नहीं खा सकते, नालियों के जरिए उनके पेट में खाना डाला जाता है। आज हम खुद खाना तो खा लेते हैं। कराची के अंदर एक बंदा था जिसके पास बड़ा पैसा अब भी है, उसको अल्लाह ने बड़ा नवाजा। वो अपने जो है एसी रूम में बैठा था, शीशे वाला उसका ऑफिस था, सामने फुटपाथ पे एक बंदा जो है वो रोटी पे दाल डाल के खा रहा था, मलंग था, फकीर था। ये बंदा उसको हसरत की निगाह से देख रहा है, करोड़पति है, लेकिन इसको एक ऐसी बीमारी थी कि ये जो है वो खाने वाली चीजें नहीं खा सकता था, सिर्फ जो है वो जूस वगैरह इस पर ही उसका गुजारा होता था। उसको हसरत की निगाह से देख रहा था, आंखों से अश्क रवा थे। लोगों ने पूछा खैर तो है? कहा काश कि मैं भी इसकी तरह खा सकता। अल्लाह अकबर। अंदाजा लगाएं हमारे लिए कितनी बड़ी जो है वो दर्स है हमारे लिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला का कितना शुक्र अदा करते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जा रहे थे, पाँव में जूता नहीं है, बोला मैं इतना बड़ा बंदा, बोला तेरी इबादत करने वाला, तुझे राजी करने वाला, मेरे पास जूता ही नहीं। थोड़ा आगे गया, देखा एक बंदे के पाँव ही नहीं थे, एक बंदे के पाँव ही नहीं थे, सजदे में गिर गए। बोला तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मुझे पाँव तो अता फरमाए। अब गौर करें, बलआम बिन बाऊरा बहुत बड़ा नाम है, बलआम बिन बाऊरा बनी इसराइल का बहुत बड़ा आलिम था, मुस्तजाबुद दावात था, फर्श पे बैठ के अर्श की बातें करता था, फर्श पे बैठ के अर्श की बातें, इसमें आजम का इल्म, अल्लाह ने इसको बड़ा इल्म अता फरमाया था, बड़ा इसके पास इल्म था, आलिम था, जबरदस्त किस्म का वली भी था, मुस्तजाबुद दावात था। जब दुआ मांगता था ना, हाथ नीचे नहीं आते थे, दुआ पहले कबूल हो जाती थी। बड़े बड़े लोग आते थे इसके पास, और हजारों की तादाद में उलमाए कराम ने तादाद लिखी है तलबा की जो इसके पास आगे इल्म दीन पढ़ा करते थे। अंदाजा लगा इतना बड़ा आलिम, जब मरा ना तो काफिर होके मरा, जब मरा तो काफिर होके मरा। तफसीर सावी में अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने लिखा है कि बाज़ अंबिया ने पूछा, अल्लामा इस्माइल हकी ने तफसीर रूहुल बयान में भी लिखा कि बाज़ अंबिया ने पूछा, मौला तूने उसको इतना बड़ा मर्तबा दिया, वली बनाया, जब मारा तो काफिर करके मारा, या तो तू उसको वली ना बनाता, इतना बड़ा दर्जा दिया, फिर उसको मारा तो काफिर करके मारा, वजह क्या है? अल्लाह ने पता क्या इरशाद फरमाया, अंबिया इसको मैंने इतना इल्म दिया था, इसको मैंने विलायत भी दी, मकाम, स्टेटस, बड़ा कुछ इसको दिया, इज्जतों के ताज भी इसको पहनाए, लेकिन इस बंदे ने ना अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी मेरा शुक्र अदा नहीं किया। आज हम गौर करें, हम अल्लाह का कितना शुक्र अदा करते हैं। खुशी का मौका हो या गमी का मौका, हमें इस्लाम ने जो तालीम दी है ना, कहा मुसीबत आ जाए तो सब्र कर लेना, और अगर तुम में खुशी हासिल हो जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा कर लेना। इसलिए तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, ये बहुत बड़ी बात है। कुरान के एक एक लफ्ज में पूरी कायनात समो कर रख दी गई है। कहा तुम शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और अता फरमाऊंगा। इमाम आजम वक्त के बड़े इमाम, पेशवा, मुक्तदा, सरदार, इतने बड़े इमाम हैं। आपसे किसी ने पूछा कि भला आपके पास इतना इल्म कैसे आया, इतना इल्म कैसे आया? आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह देता गया, मैं शुक्र अदा करता गया, वो और देता गया, मैं शुक्र अदा करता गया, इस सिलसिला चलता रहा। और इतने बड़े इमाम थे, आपका अंदाज क्या था कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं शुक्र अदा करता रहा। तो शुक्र की आदत अपनाएं। अगर कोई मुसीबत आ जाए तो ये नहीं यार फलां तो बड़ा गुनाहगार है, शराबी है, हुज़ानी है, वो बदकार है, नाहंजार है, बदअतवार है, और मैं जो है वो नमाज़ें भी पढ़ता हूँ, फिर भी मेरे साथ ये मामला है, मैं परेशान रहता हूँ, वो बड़ा खुशहाल है। याद रखिए, ये अल्लाह तबारक व तआला का एक इम्तिहान होता है हमारे लिए। अल्लाह तबारक व तआला किसी को दे के आजमाता है, किसी से ले के आजमाता है, और फिर देखता है कि इसमें से साबिर और शाकिर बंदा कौन है। और जो साबिर और शाकिर होता है, फिर अल्लाह उसको ऐसी नेमतें अता फरमाता है कि वो सारी जिंदगी खुशहाल रहता है। लिहाजा मुसीबत आ जाए तो हमने सब्र करना है, और अगर कभी अल्लाह तबारक व तआला में खुशियां अता फरमाए तो हमने क्या करना है? अल्लाह का शुक्र अदा करना है। या आका अलैहिस्सलाम की सीरत के चंद पहलू थे जो इस्लाही पहलू थे, वो मैंने आपके सामने रखे हैं।
अलैहिस्सलाम की सीरत से ऐसी ऐसी बातें सीखने को मिलती है ना कि बंदे की अकल दंग रह जाती है। आका ने 63 साल जिंदगी में ना पूरी दुनिया को एक ऐसा लाहे अमल दे दिया। आका अलैहिस्सलाम ने 63 साल जिंदगी में अमली तौर पर भी, कौली तौर पर भी, फरमा के भी इरशाद फरमाया, करके भी दिखाया है, करके भी आका ने दिखाया है। लेकिन चूंकि वक्त इतना नहीं है, ये चंद बातें इस्लाही थी, मैंने आपके सामने रखी। अब आ जाए सहाबा की सीरत पे। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आका के बाद सबसे अफजल दर्जा सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत से हमें क्या मिलता है? आप देखें, ये वो सहाबी रसूल हैं जिन पे आका को नाज हुआ करता था। सदर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऐसा नाज कि आज भी आका ने अपने पास लिटाया हुआ है। आका अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत, आका को इनसे इतना प्यार। 18 साल की सैयदना सिद्दीक अकबर की उम्र है, 20 साल आका अलैहिस्सलाम की उम्र है। दोस्ती लगी है और ऐसी लगी है, आज भी साथ है, कयामत वाले दिन भी साथ होंगे। आज भी साथ है, कयामत वाले दिन भी साथ होंगे। यहाँ पर आपकी सीरत बड़ी तवील है, बस एक ही जुमला कहता हूँ। आप देखें, इंसान को अपनी जिंदगी में ना 3 चीजों से बड़ा प्यार होता है। वो क्या है? एक जान है, एक माल है, एक औलाद है। जान हर एक को प्यारी है, जान हर एक को प्यारी, क्योंकि ये मेरी जान है। हर एक बंदे को अपनी जान प्यारी होती है। माल वो इंसान को बड़ा प्यारा होता है जो उसने खून पसीने की कमाई से कमाया हो, उसने अपना खून पसीना एक कर दिया हो, मेहनत से कमाया हो, वो माल इंसान को बड़ा प्यारा होता है। यानी माल हलाल, हराम की बात नहीं कर रहा। बसा औकात जो है वो लोग माल उड़ा भी देते हैं तो कोई कहेगा ये तो उसको प्यारा ही नहीं है। तो बसा औकात मैं ये बात अपनी तौर पर कह रहा हूँ कि भाई माल जो हलाल होता है ना, वो इंसान की फितरत में है कि इंसान को बड़ा पसंद होता है, उससे उसको बड़ी मोहब्बत होती है। तीसरी बात, औलाद। औलाद यहाँ पर जो बे औलाद हैं या जिनकी शादी नहीं हुई, तो वो शायद इस चीज को ना समझें, लेकिन जो बताना मैं चाह रहा हूँ वो ये कि जो साहिब औलाद है ना, ये उनसे जाके कोई पूछे औलाद की मोहब्बत कैसे कहते किसको है। बिजनेस में लॉस हो जाए ना, लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। लाखों का जो है वो नुकसान हो जाए, लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। किसी का नौजवान बेटा एक्सीडेंट में माजूर हो जाए ना, बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा ही है ना, जो साहिब औलाद बैठे, औलाद का दुख जो है वो ऐसा है कि बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाता। इन 3 चीजों से इंसान को बड़ी मोहब्बत होती है, जान है, माल है, औलाद है। सिद्दीक अकबर की सीरत उठा के देख ले, जान भी आका के कदमों पे कुर्बान कर दी, माल भी आका के कदमों पे कुर्बान कर दिया, औलाद भी आका के कदमों पे कुर्बान कर दी है। मिसालें इसकी बहुत है, एक एक मिसाल दे के बात को खत्म करता हूं। गारे सौर में सांप आपको डसता रहा, लेकिन आपने आका को ना जगाया, कहीं आका अलैहिस्सलाम के आराम में खलल ना आ जाए। हत्ता के आका अलैहिस्सलाम के रुखसार मुबारक पर सिद्दीक अकबर के आंसू का कतरा गिरा। आका बेदार हुए, फरमाया सिद्दीक क्या हुआ? कहने लगे या रसूलल्लाह फिदा का उम्मी वाबी, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। अंदाजा लगाए कि इस आलम में भी ये नहीं कहा कि या रसूलल्लाह मुझे सामने डस लिया, बल्कि फौरन कहा आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो। आका अलैहिस्सलाम भी आका थे ना, इन्होंने तो जान दे दी थी। अब आका अपनी हैसियत, अपने मकाम, मर्तबे के मुताबिक अजर अता फरमाता है। आका जैसा कहनात में कोई नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने अजर क्या देना था, लुआब निकाला, लगा दिया, जान ही वापस कर दी, जान ही वापस कर दी। सिद्दीक अकबर तो जान दे चुके थे, वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है, जो करनी बशर की है वो कर चुके थे, लेकिन आका ने जान वापस कर दी। ये जान की बात आई है। अब अगर बात की जाए औलाद की, औलाद की बात के हवाले से कोई इस तरह का वाक्या तो नहीं मिलता, लेकिन एक वाक्या मिलता है जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिद्दीक अकबर ने अपनी औलाद भी कुर्बान कर देनी थी। आप वो सहाबी हैं, आपके वालिद भी सहाबी हैं, खुद भी आप सहाबी हैं, आपके बेटे भी सहाबी हैं, पोते भी सहाबी हैं, आपके नवासे नवासियां वो भी सहाबियात में से हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला वो सहाबी हैं। अब कोई ऐसा वाकई नहीं मिलता कि औलाद की बात की जाए। एक बार ना आप नाश्ता कर रहे थे अपने बेटे हजरत अब्दुर्रहमान के साथ, जो पहले ईमान नहीं लाए थे, बाद में ईमान लाए थे। अब ना उन्होंने एक बात कही, बाबा फुलां जंग में आप मेरी तलवार के नीचे आए थे, आप मेरी तलवार के नीचे आए थे, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया था, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया था। अभी ये इस्लाम नहीं लाए थे ना उस जंग में, कहा मैंने बाप समझ के छोड़ दिया था। आपने फरमाया बेटे अगर उस जंग में तू मेरी तलवार के नीचे आता, मैं बेटा समझ के ना छोड़ता, हुजूर का दुश्मन समझ कर तेरा सर ही उड़ा के रख देता। ये आपके जज्बात, ये आपके अल्फाज, ये आपके एहसासात बताते हैं। औलाद की बारी आए तो आप औलाद भी कुर्बान कर दें, माल की बारी आए तो खुद आका फरमाते हैं मुझे किसी के माल ने इतना नफा नहीं दिया जितना नफा मुझे सिद्दीक अकबर के माल ने दिया है। और खुद इरशाद फरमाया करते थे कि जो एहसानात अबू बकर ने मुझ पर किए हैं, सबके एहसानात का बदला मैं दुनिया में दे चुका, लेकिन अबू बकर के एहसानों का बदला कल बरोज़े क़यामत मेरा खुदा चुकाएगा।
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم ہستی ہیں، ساری زندگی آقا کے ساتھ رہے، جو سب سے پہلے ایمان لائے ابو بکر، جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ابو بکر، جو سب سے پہلے اسلام کے مبلغ کہلائے ابو بکر، جنہوں نے کعبے کے سین میں خطبہ دیا ابو بکر، غار ثور میں کوئی تیسرا نہیں تھا، آقا کا چہرہ 3 راتیں 3 دن تکتے رہے وہ بھی ابو بکر، آقا علیہ السلام کے لیے دودھ کا پیالہ لے کے آئے، آقا نے نوش فرمایا وہ بھی ابو بکر، مسجد قباء کی بنیاد رکھی وہ بھی ابو بکر، آقا کے سر پہ چادر کو تانا، دنیا والوں کو خادم و مخدوم کا فرق بتایا وہ بھی ابو بکر، جو اپنی زندگی میں خلیفہ بنے ابو بکر، اپنے والد صاحب کے ہوتے ہوئے خلیفہ بنے ابو بکر، جو جامع قرآن کہلائے وہ ابو بکر، جو ساری زندگی آقا کے ساتھ رہے وہ ابو بکر، بچپن بھی ساتھ، جوانی ساتھ، بڑھاپا ساتھ، سفر ساتھ، حضر ساتھ، غار میں بھی ساتھ اور آج مزار میں بھی ساتھ ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، ساری زندگی آقا علیہ السلام کے ساتھ گزاری ہے۔ ویسے آپ کی سیرت کے اور بھی کئی پہلو ہیں، لیکن یہاں تک بات ختم کرتا ہوں، آگے چلیں۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت بھی بڑی یاد ہے، آپ کی سیرت کو بندہ پڑھے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، یار کمال کی ہستی تھے، کمال کی شخصیت تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آقا نے فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر، فرمایا عمر جس گلی سے گزر جاتا ہے شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا ہے۔ عمر کی شان یہ ہے، ایک مغربی مفکر نے تو یہاں تک لکھا تھا اگر دنیا والوں کو ایک اور عمر مل جائے، کائنات کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک صرف ایک ہی مذہب ہوگا جس کا نام اسلام ہوگا، جس کا نام اسلام ہوگا۔ حضرت عمر وہ ہستی تھے اور جن پہ عدل بھی ناز کرتا تھا اور جن پہ انصاف بھی فخر کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پھر صدیق اکبر سے بڑی محبت تھی۔ جب صدیق اکبر کا وصال ہوا نا تو انہوں نے سوچا کہ یار جتنے بھی اوصاف صدیق اکبر میں تھے نا وہ میں نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے، میں نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ آپ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے یار میرے اندر اگر تم کوئی ایسی خوبی دیکھو یا ایسی خوبی نہ دیکھو جو صدیق اکبر کے اندر تھی اور میرے اندر نہیں تو مجھے بتاؤ۔ کسی نے آپ کو بتایا کہ بلّہ ہم نے صدیق اکبر کو نا اس پہاڑ پہ جاتے دیکھا تھا، لیکن آپ کو جاتے نہیں دیکھا۔ آپ کو توجہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ توجہ میں اگلے رکھو، میرا آلہ اللہ گلہ بہ کے تمہارے تو چپ کی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ صدیق اکبر سے انہوں نے کہا حضرت عمر سے کہ صدیق اکبر کو ہم نے اس پہاڑ پہ جاتے دیکھا، کبھی آپ کو جاتے نہیں دیکھا، ذرا ایک پھیرا ادھر کا بھی لگائیں، ایک چکر آپ ادھر کا بھی لگائیں۔ حضرت عمر نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ آپ وہاں پر گئے نا، دیکھا کہ ایک اپاہج بندہ پڑا ہوا ہے، ایک اپاہج بندہ جس کے ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، معذور ہے، وہ وہاں پہ پڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار یہ بندہ یہاں پر پڑا ہے، صدیق اکبر اس کو بھی روٹی کھلانے آتے تھے۔ آپ گئے گھر سے کھانا بنوایا، اس کے لیے وہ کھانا لے کر کے آئے، ایک نوالا بنایا، اس کے منہ میں ڈالا تو اس کی آہ نکلی، زور سے نا اس کی آواز نکلی۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ لگتا ہے جو بندہ مجھے کھانا کھلاتا تھا نا اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے؟ کہا اس لیے کہ جو بندہ مجھے کھانا کھلاتا تھا نا اس کو پتا تھا میرے منہ میں دانت نہیں ہے، وہ اپنے منہ میں ڈالتا پیس کے پھر مجھے کھلایا کرتا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا تھا میں تو ایمان تو دور کی بات ہے اعمال میں بھی صدیق اکبر سے آگے نہیں نکل سکتا۔ یہ تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ اور حضرت عمر تو پھر آپ کی تو ایسے ایسے کارنامے ہیں کہ بندہ پڑھے تو حیران رہ جاتی ہے کہ یار یہ بھی کمال ہستی تھے۔ راتوں کو بھی جو ہے وہ پہرا دینا، راتوں کو بھی گلیوں میں گھومنا کہ کہیں عمر کے ہوتے ہوئے کوئی غریب بھوکا نہ سو جائے۔ آپ خود فرمایا کرتے تھے نہر فرات کے قریب اگر کوئی بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا نا عمر اس کا بھی جواب دہ ہوگا۔ حضرت عثمان پہ آ جائیں، ان کی تو شان ہی نرالی۔ آقا فرماتے ہیں لکل نبی رفیق فی الجنہ، ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوگا، میرا ساتھی جنت میں میرا عثمان ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا، ان کا وصال ہو گیا۔ آقا نے دوسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیا اور ارشاد فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ ایسا ان سے پیار، ایسی ان سے محبت۔ آپ آ جائیں حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، ان کی تو شان ہی نرالی ہے۔ جب ان کا ذکر آتا ہے لبوں پہ ویسے مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہے جب یہ پیدا ہوئے آنکھیں کھولی تو محمد عربی کا جمال جہاں آرا دیکھا، آقا کا چہرہ دیکھا، آقا کا حسن دیکھا۔ اب جب انہوں نے منہ کھولا آقا کی زبان کو چوسا۔ کتنا خوش قسمت ہوگا وہ شخص جس نے اس دنیا میں آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے مصطفیٰ کو دیکھا، جب آقا علیہ السلام کو دیکھا، جب منہ کھولا تو آقا کی زبان اقدس کو چوسا۔
ایک مرتبہ صدیق اکبر نا حضرت علی کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ فاضلہ عفیفہ محدثہ مفسرہ مدققہ محققہ مفکرہ مورخہ متکلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے پوچھا بابا آپ حضرت علی کو غور سے دیکھ رہے تھے, خیر تو ہے؟ کہا میں نے مصطفیٰ کو فرماتے سنا ہے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے, علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. ہم تو نہیں دیکھ سکتے, ہم کیا کریں؟ فرمایا ذکر علی عبادت, علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے, علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اللہ نے وہ شان, وہ عظمت, وہ رفعت, وہ مقام, وہ مرتبہ حضرت علی کو عطا فرمایا. لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کر دی کہ نہیں جی اس چیز کا علم تھا تو اس چیز کا علم نہیں تھا. وہ آقا نے ان کی شان کو بیان فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے, علی اس کا دروازہ ہے. آپ کے علم کے مقام کو جو ہے حضرت ابن مسعود بیان کیا کرتے تھے کہ قرآن نہ 7 نقطوں پر اترا ہے, ایک ایک حرف کا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے. علی وہ عالم دین ہے جس کو ظاہر کا بھی پتہ ہے باطن کا بھی پتہ ہے. حضرت علی خود فرمایا کرتے تھے قرآن کی ایک ایک آیت کے بارے میں بتا سکتا ہوں, کون سی آیت کب کہاں کیسے کیوں نازل ہوئی تھی. یہ آپ کے علم کی شان تھی, یہ آپ کا مقام و مرتبہ تھا. آپ کی سیرت کے تو کئی پہلو ہیں, لیکن بس ایک ہی بات عرض کرتا جنہوں لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کر دی. کسی نے کہا کہ جس کا نام محمد علی ہو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہم زیادہ تاریخ کے اندر نہیں جاتے کہ وہاں پر تاریخ کے کئی جھونکے ہیں. آپ زیادہ دور نہ جائیں, قریب نہیں چلے جائیں. جس کے نام ہی جس کا علی ہو نا اللہ اس کو بڑی طاقت عطا فرما دیتا. آپ دیکھیں یہ پاکستان کس نے بنایا تھا, وہ بھی محمد علی تھا نا, محمد علی تھا. جس نے پاکستان کی تحریک کا پرچار کیا تھا وہ بھی جماعت علی تھا, وہ بھی جماعت علی تھا. اور دنیا جس کو قلندر کہتی ہے وہ بھی بو علی تھا, وہ بھی بو علی تھا. آپ دیکھیں جس کو دنیا داتا گنج بخش کی حجویری کہتی ہے وہ بھی کوئی اور نہیں, وہ بھی عثمان بن علی تھا, وہ بھی عثمان بن علی تھا. اور جس نے قادیانیت کو فتح کیا وہ بھی پیر مہر علی تھا. اب یہاں پر میں نے چند مثالیں دی ہیں, ورنہ اگر بندہ مطالعہ کرے تو کئی ایسے نام نکل آئیں گے جن کا نام علی تھا. اللہ نے اس کو پھر وہ طاقت عطا فرمائی, اس شہرت عطا فرمائی کہ دنیا آج بھی ان کا نام لینا فخر محسوس کرتی ہے. حضرت علی کی پھر اپنی شان کا عالم کیا ہوگا. حضرت علی جائیں میدان میں, مرحب سامنے آ جائے, اور تو نہیں جانتا علی میں مرحب ہوں, اور جس سے پورا عالم تھر تھر کامتا ہے. حضرت علی نے کیا کہا تھا, اور تو اگر مرحب ہے تو میں رب کا بھی شعر ہوں, مصطفیٰ کا بھی شعر ہوں. حضرت علی کی طاقت تو پھر وہ تھی نا, تلوار گھمائی اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, اس کے گھوڑے کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. آپ ہی تھے نا جس نے کعبے سے بتوں کو جا کے توڑ دیا, جا کر بتوں کو گرا دیا. حضرت علی وہ تھے جن کے ایک ہاتھ کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ خیبر آج بھی کامتا ہے, خیبر آج بھی کامتا ہے. وہ دروازہ جس کو 40 لوگ نہ اٹھا سکے حضرت علی نے اکیلے ہاتھ سے اکھاڑ پھینکا تھا. وہ ایک بندہ آیا تھا دور دراز سے, وہ کہنے لگا کہ میں نے وہ بندہ دیکھنا ہے, اور جس نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا. دیکھا کہ وہ سامنے بیٹھے ہیں, حضرت علی اخروٹ کھا رہے تھے نا. وہ بندہ آ کر دیکھنے لگا ان سے تو اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا, انہوں نے خیبر کا دروازہ کیسے توڑا تھا. آپ نے فرمایا اخروٹ کو چھوڑ, کوئی خیبر ہے تو لا, آج بھی توڑ کے رکھ دوں گا. حضرت علی کی طاقت ایسی تھی کہ یہ تو جسمانی طاقت ہے, وہ تو میں نے ایمان کی طاقت سے توڑا تھا. ایسے کئی بیسیوں واقعات ہیں حضرت علی کی طاقت پہ, آپ کی شجاعت پہ, آپ کی بہادری پہ بندہ دیکھ کے تو دنگ رہ جاتا ہے, پڑھے حیران رہ جاتا ہے. اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی, علم ایسا بے مثال. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی شان عظمت عطا فرمائی. آج لوگ کہتے ہیں جی لوگ ان کا مقام اتنا زیادہ کیوں بیان کرتے ہیں. یہ کوئی عام ہستی تھے, اپنا اور اپنا پورا خاندان آقا کے قدموں پہ قربان کر دینا انہی کا خاصہ ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا, حضرت علی کو شہید کیا گیا. امام حسین کی تو میں بات ہی نہیں کرتا نا, بچہ بچہ جانتا ہے. میدان کربلا آج بھی گواہی دیتا, 71 لاشیں کندھے پہ اٹھا کے لے آنا کوئی مذاق ہے. غور کریں, اپنا سر کٹا کے دین کا سر فخر سے بلند کر دینا کوئی مذاق ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا خاندان تھا. سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان کو دیکھ لے, ساری رات عبادت کرتی تھی, دن کو کام کیا کرتی تھی, ہاتھوں میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے, لیکن عبادت کرنے کے بعد, ساری رات نماز پڑھنے کے بعد امام حسن سے پوچھا گیا آپ کی والدہ دعا کیا مانگا کرتی تھی. کہا میری والدہ دعا مانگتی تھی مولا میرے بابا کی امت کو بخش دے, میرے بابا کی امت کو بخش دے. یہ شان کی سیدہ فاطمہ الزہرا مولا علی حسنین کریمان. یہ گھرانہ بڑا پاک گھرانہ, ان کی قربانیاں ایسی ہیں جن کو جو ہے فراموش نہیں کیا جا سکتا, جن کو لوگوں کو بتایا جائے. ان لوگوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ آقا کے دین پہ قربان کیا ہے.
इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की ऐसी ऐसी कुर्बानियां हैं, बंदा वाक़यात पढ़े ना करबला का तो आपने शायद एक ही वाक़या सुना हो, 10 मुहर्रम हराम वाला सफर में जो आजमाइशें आई, फिर मैदान करबला 10 मुहर्रम के बाद जो आजमाइशें आपके खानदान पे आई, जो मुसीबतों के पहाड़ उन पर टूटे, बंदा पढ़े तो आंखों से अश्क रवा हो जाते हैं। यार इन्होंने ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी हैं। अब औलिया पे अगर आ जाए, औलिया के हवाले से चंद बातें अर्ज करूंगा। आप देखें, अक्सर अमूमन आपने ये जुमला सुना होगा, लोग कहते हैं जी मैं नमाज के लिए तो आना चाह रहा था लेकिन शैतान ने आने नहीं दिया, शैतान ने आने नहीं दिया, मैंने तो उठना था फजर में, शैतान ने उठने नहीं दिया। इस तरह के जुमले आपने सुने होंगे। कई लोग इस तरह भी कह जाते हैं कि यार मैंने फलां काम करना था लेकिन शैतान की वजह से मैं कर नहीं सका, शैतान हावी हो गया था। यानी शैतान के पास इतनी ताकत है वो हमें नमाज के लिए नहीं उठने देता। शैतान के पास इतनी ताकत है कि हम कोई काम करने लगे तो उसने करने नहीं दिया। और शैतान है कौन? ये अल्लाह का दुश्मन है। कौन है? अल्लाह का दुश्मन है। जब खुदा अपने दुश्मन को इतनी ताकत दे सकता है तो औलिया तो रब के दोस्त हैं, औलिया तो रब के दोस्त हैं। अल्लाह उनको कितनी ताकत अता फरमाएगा। हर दौर में औलिया का आना जाना रहा है ना, हर दौर में औलिया की फिर अपनी शानें हैं। आप देखें हजरत मारूफ कखी रहमतुल्लाह तआला अलैह, हजरत सरी सख्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बिश्र हाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह, दादा गंज बख्शली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह। फिर हर दौर के अंदर औलिया का आना जाना लगा रहा। अब अगर हम इसी पट्टी के लोगों को देख लेते हैं तो आप देखें ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, कई हमारे अकाबिर में कई ऐसे ऐसे औलिया कराम गुजरे हैं जिनको अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई थी। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह, ख्वाजा यार मोहम्मद फरीदी रहमतुल्लाह तआला अलैह। और मुल्तान चले जाए वो तो फिर मदीनतुल औलिया है ना, मदीनतुल औलिया, वो तो औलिया का शहर है। उस शरीफ में चले जाए, बड़े बड़े औलिया कराम यहाँ पर आए और फिर चले गए। औलिया कराम का आना जाना हर दौर में लगा रहा। इस दौर के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला के औलिया कराम मौजूद है, लेकिन बताना ये मकसूद है अल्लाह ने इनको बड़ी शान बड़ी अज़मत अता फरमाई। कुरान के दामन में औलिया के 20 वाक़ियात हैं। सूरह कहफ किनके बारे में है? औलिया के बारे में। अंबिया के बारे में तो नहीं ना, औलिया के बारे में है। वो लोग जो गार के अंदर थे और 350 साल वहां पर सोते रहे, जब उठे तो उन्होंने यही समझा कि हम सुबह सोए हैं शाम को उठ गए। वो कौन थे? वो भी अल्लाह वाले ही थे ना। उनके साथ एक कुत्ता भी था, उस कुत्ते का तज़किरा भी कुरान के अंदर मौजूद है। वहां से अल्लाह ने दुनिया वालों को ये बता दिया कि लोगों अगर कोई मेरे दोस्तों से निस्बत रख लेता है ना, वो जात का इंसान ना भी हो कुत्ता भी हो तो काबिल जिक्र हो जाता है। अल्लाह ने फिर उसका जिक्र कुरान में किया, सिर्फ जिक्र ही नहीं किया, उसके बैठने के स्टाइल को भी कुरान ने बयान किया है कि वो कुत्ता गार के मुंह पर बैठा कैसे था। हजरत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का पूरा पस मंजर वाक़या कुरान के दामन में मौजूद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो आपकी उम्मत का वली थे हजरत आसिफ बिन बरखिया, उनका वाक़या मौजूद है। और भी 20 वाक़यात कुरान के दामन में औलिया कराम के मौजूद हैं। लेकिन चंद बातें औलिया कराम के हवाले से हमारे यहाँ ना सिर्फ करामतें बयान की जाती हैं। गौसे पाक ने मुर्दा जिंदा कर दिया, गौसे पाक ने मुर्गी जिंदा कर दी, ये कर दिया वो कर दिया, तो लोग सिर्फ यही सुनते हैं। अगर उनका इल्मी मकाम, उनकी इबादत और रियासत का तज़किरा बंदा सुने ना तो पता चलता है कि वाकई यार इन लोगों ने कमाल किया, वाकई ये इतने बड़े आलिम थे, वाकई इन लोगों को माना जा सकता है कि ये अल्लाह के वली थे। सिर्फ करामतें ही नहीं ना, इनकी और भी तो बहुत कुछ है। दाता गंज बख्शली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, इमाम आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह, जहां बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, आलिम दीन थे, वहीं बहुत बड़े इबादत गुजार भी थे। जहां आपका विसाल हुआ है ना, वहां आपने 7000 मरतबा कुरान का खत्म किया था, 7000 मरतबा कुरान का खत्म किया था। 55 आपने हज किए थे। आखिरी बार जब हज पे गए ना, आपने काबे के खुदाम को पैसे भी दिए, उनकी दिलजोई भी की, काबे के अंदर गए, 2 सतूनों के दरमियान खड़े हो गए, आपने अल्लाह अकबर कहा, अल्लाह अकबर, एक टांग पे खड़े हो गए, सूरह फातिहा पढ़ी, आधा कुरान खत्म कर दिया, फिर रुकू किया, सजदे में गए, उसके बाद उठे, दूसरे पांव पे खड़े हुए, सूरह फातिहा पढ़ी, बकिया आधा कुरान खत्म कर दिया, सलाम फेरा, दुआ मांगी, मौला मैं तो आजिज बंदा हूं, तेरी इबादत का हक अदा नहीं कर सका, बस ये जो कुछ हो सका मैंने कर दिया। मौला मैं तुझसे प्यार बड़ा करता हूं। काबे के कोने से आवाज आई, ऐ अबू हनीफा, हमने तुझे भी बख्श दिया, जो तेरी पैरवी करेगा उसे भी माफ कर देंगे। और करें अंदाजा लगाएं कि इन लोगों ने ये मकाम ऐसे नहीं पाया, इबादतें की हैं, रियासतें की हैं, रब को राजी किया, ये इमाम आजम का मकाम था। गौसे पाक पे चले जाएं, वो दाता गंज बख्शली हजवेरी पे चले जाएं, और बड़े बड़े अकाबिर हमारे गुजरे। गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला ने सिर्फ करामतें ही नहीं दिखाई दुनिया वालों को, आपका इल्मी मकाम भी था, इबादत और रियासत भी थी। आज लोगों को पीर बने होते हैं, कुरान पढ़ना नहीं आता। हम उस अब्दुल कादिर जिलानी के मानने वाले हैं जो माँ के पेट में 18 पारे याद करके आया था, माँ के पेट में 18 पारे याद करके आए, 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करते रहे। मुल्ला अली कारी ने लिखा कि 15 साल तक एक पांव पे खड़े होकर आपने कुरान खत्म
किया। 25 साल तक इराक के जंगलों में दरख्तों के पत्ते खा खा कर गुजारा किया, इल्म दीन पढ़ा, आलिम बने, तब जाकर दुनिया वालों को दीन सिखाया। ये थे गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह। इनको ये मकाम ऐसे नहीं मिल गया। इल्म का आलम क्या था? बगदाद के 100 आलिम आए थे आपका इम्तिहान लेने कि आज हम इम्तिहान लेते हैं कि इनको आता क्या है। 100 आलिम आए, आपने अपनी मोमिनाना फिरासत से जान लिया मेरा इम्तिहान लेने आए हैं, सामने आके बैठे, आपने इशारा किया, सबका इल्म ही उठा लिया, सारे एक दूसरे का मुंह ही देखने लग गए, हम करने क्या आए थे। उसके बाद फिर आपने एक एक को खड़ा किया, एक को खड़ा किया, उससे कहा कि ये तेरा सवाल है, ये तेरा जवाब है, बैठ जा। फिर दूसरे को खड़ा किया कि ये तेरा सवाल है, ये तेरा जवाब है, बैठ जा। 100 के 100 आलिमों को उनके सवालात भी बताए, उनके जवाबात भी बताए। ये आपका इल्म था। इतने बड़ी आलिम दीन थे और इतने बड़े मुफ्ती थे, जबरदस्त किस्म का अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मलका अता फरमाया था। और एक आलिम का इम्तिहान आपने भी लिया था। ये 100 आलिम तो आपका इम्तिहान लेने आए थे, एक आलिम का इम्तिहान आपने भी लिया था। दूर दराज से एक आलिम आया था आपका इम्तिहान लेने कि यार इम्तिहान लेके आता हूँ, इनके पास क्या क्या होता है। वहां पे वो ज़ियारत करने के लिए आए ना, इनका इम्तिहान गौसे पाक ने लिया था। जब वो करीब आए ना, देखा कि गौसे पाक वुजू कर रहे हैं, उन्होंने पहले नाक में पानी चढ़ाया, फिर कुल्ली की। वो आलिम दीन दीदार करने आए थे, वो जाने लगे ना कि मैं तो समझता था कि बहुत बड़े अल्लाह के वली होंगे, आलिम होंगे, इनको तो वुजू करना नहीं आता। वो वापस जाने लगे। गौसे पाक उठे, फरमाया क्या हुआ मौलाना, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? मैं जी आपका दीदार करने आया था, आपको तो वुजू ही करना नहीं आता, मैं वापस जा रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ। आपने फरमाया खैर तो है, कैसे मैंने वुजू ठीक नहीं किया? कहा आपने पहले नाक में पानी चढ़ाया फिर कुल्ली की है, हालांकि पहले कुल्ली की जाती है फिर नाक में पानी चढ़ाया जाता है, आपको तो वुजू का पता नहीं। आपने फरमाया कि बताओ पहले क्या किया जाता है? वो कहने लगा पहले कुल्ली फिर नाक में पानी। आपने फरमाया कहाँ लिखा है? आपने फरमाया कहाँ लिखा है? आपने उसका इम्तिहान लेना चाहा ना। उसने कहा कि मेरी किताबों में लिखा है। कल खोलो दिखाओ किताब। कहा वो तो मेरी लाइब्रेरी में है, वो तो अपने मुल्क में है, मैं तो वहां से आपका दीदार करने आया था। आपने इशारा किया, लाइब्रेरी सामने आ गई। फरमाया खोल किताब, फरमाया खोल किताब। उसने किताब खोली। जब उसने वो सफा खोला ना, आपने इशारा किया तो उस सफे पे वही लिखा था जो गौसे पाक ने किया था। आपने फरमाया आप बता। कहने लगा नहीं जी, किताब में गलत लिखा है, हक वही है जो मैंने कहा है। आपने फरमाया अच्छा। आपने जमीन को हुक्म दिया कि इसको अपने अंदर धंसा लो। जमीन ने उसको पेट तक अपने अंदर धंसा लिया। आपने फरमाया अब बता, हक वो है जो मैंने किया है या जो तू कह रहा है वो है? अब भी वो आलिम कहने लगा जो कुछ भी हो जाए, हक वही है जो मैंने कहा है, हक वही है जो मैंने कहा है। पहले कुल्ली फिर नाक में पानी चढ़ाया जाता। आपने फरमाया अच्छा। आपने जमीन को हुक्म दिया कि इसको गर्दन तक धंसा लो। जमीन ने गर्दन तक धंसा लिया। आपने फरमाया आप बता। उसने कहा अब भी मेरी वही बात है, हक वही है जो मैंने कहा है, हक वही है जो मैंने कहा है। आपने फरमाया कि लोहे महफूज पे लिखा हुआ दिखा दूं तो? कहने लगा दिखाएं। आपने जो है ना इशारा किया, फरमाया ऊपर देख। उसने जब ऊपर देखा तो लोहे महफूज पे वही लिखा था जो गौसे पाक ने किया था। आपने फरमाया आप बता। कहने लगा जी हक वही है जो मैंने कहा है, लोहे महफूज पे गलत लिखा है। आपने फरमाया अच्छा। आपने जमीन को हुक्म दिया कि इसको छोड़ दे। जमीन ने उसको छोड़ा। आपने उसके सीने पे हाथ मारा कि जब तक इस धरती पर तुझ जैसे आलिम जिंदा है ना, ये उम्मत गुमराह नहीं हो सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, नारे गौसिया। ये उम्मत गुमराह नहीं हो सकती। ये गौसे पाक की जो है वो इल्म का आलम था। इबादत और रियाजत आपने सुन ली। आपकी इबादत तो ऐसी थी कि शैतान भी डर गया। उसने कहा यार ये बंदा इतनी इबादत कर रहा है, ये बंदा तो बख्शा बख्शाया जाएगा, अपने साथ औरों को भी ले जाएगा, इसको ना गुमराह करो। वो आया था ना सामने बादल की शक्ल में, अब्दुल कादिर तू उस मकाम को जा पहुंचा, तुझे नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं। आगे भी गौसे पाक थे। वो कहने लगे तू तो मुझे कोई कमीना, लाइन, शैतान, मरदूद, रजीम लगता है। नमाज तो मेरे आका को माफ नहीं हुई, मैं तो उनका गुलाम हूं, मैं तो उनका गुलाम हूं, मुझे कैसे माफ हो सकती है? वो धुआं बन के उड़ने लगा। आवाज आई अब्दुल कादिर इस बात से मैंने कई वलियों को गुमराह कर दिया, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। आगे भी गौसे पाक ने फरमाया तो झूठ बोलता है, मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मेरे रब के फजल ने बचाया है, मुझे मेरे रब के फजल ने बचाया। ये थी आपकी शान। ये आपको मकाम ऐसा नहीं मिला, हमने सिर्फ करामतें ही सुन रखी हैं, तभी लोगों को ना जहन नहीं बनता। सुन्नी हजरात तो मान लेते हैं ये गौसे पाक का ये मकाम है, लेकिन दूसरा नहीं मान पाता। उसकी वजह यह है कि हमने लोगों को इनका ये मकाम बताया ही नहीं, उनकी इल्मी खिदमात बताई ही नहीं, उनकी इबादत और रियाजत उनको बताया ही नहीं। इसलिए आपने जो करामतें दिखाई है ना, वो भी अपने लिए नहीं दिखाई, मुस्तफा के दीन के लिए दिखाई है। वो ईसाई को आपने मुर्दा जिंदा करके दिखाया तो उसने कहा बताएं क्या करना है? आपने फरमाया कुछ ना कर, तो मेरे घर की सब्जी ना ला, मेरे घर का जो है वो सफाई ना कर, मैं भी मुस्तफा के दर का नौकर हूं, तू भी उसी दर का नौकर बन जा।
आपने करामतें भी अपने लिए नहीं बल्कि मुस्तफा के दीन के लिए दिखाई हैं। और भी कई औलिया कराम है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपकी तो फिरशानी बुलंद वाला है। लोगों ने तरह तरह की बातें कर डाली और कई तरह के मामलात हुए, लोगों ने तरह तरह की बातें की, लेकिन आप देखें औलिया का सिलसिला हर दौर में रहा है। अगर शैतान एक वक्त में लाखों लोगों को गुमराह कर सकता है ना, फिर ख्वाजा गरीब नवाज की एक निगाह 90 लाख हिंदुओं को कलमा भी पढ़ा सकती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती थे, 9 साल की उम्र में हिफ्ज कर लिया था। और आप रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि आप एक खत्म दिन में करते थे, एक खत्म रात में करते थे। और एक बड़ी प्यारी और अनोखी बात आपकी सीरत की ये है कि जो 3 दिन आपकी सोहबत में बैठ जाता था, खुदा उसको भी अपना वली बना लेता था। 3 दिन जो आपकी सोहबत में बैठ जाता, अल्लाह उसको भी अपना वली बना लेता था। अब ख्वाजा गरीब नवाज इनको क्यों कहा जाता है, इसकी भी बड़ी जो है वो दिलचस्प वाक़ियात है। इसके आप जो है गरीबों के साथ बड़ा प्यार भरा सलूक रखते थे, बड़ा ऐसे अखलाक उनको देते थे कि लोग आपसे जो है मोहब्बत करने लगते। लेकिन एक सदरी वाक़या नकल किया जाता है कि आपको गरीब नवाज क्यों कहा जाता था। बाकी 10 से 15 मिनट रह गए हैं, तवज्जो मेरी तरफ रखें। आप देखें कि ख्वाजा गरीब नवाज को गरीब नवाज क्यों कहते थे। उसकी एक वजह उलमा कराम ने यह भी लिखी कि इनका जमाना और गौसे पाक का जमाना ना एक ही है। इनका जमाना और गौसे पाक का जमाना एक ही है। दाता गंज बख्श अली हजवेरी ये गौसे पाक से भी पहले के बुजुर्ग हैं। दाता गंज बख्श अली हजवेरी ये गौसे पाक से भी पहले के बुजुर्ग हैं। लेकिन गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह और ख्वाजा गरीब नवाज ये आपस में रिश्तेदार थे, जमाना भी इनका है। एक मर्तबा ना गौसे पाक ने ऐलान कर दिया कि जो बंदा फजर की नमाज मेरे पीछे पड़ेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। आपने ये ऐलान किया, बहुत बड़ा ऐलान था कि जो फजर की नमाज मेरे पीछे पड़ेगा वो जन्नत में दाखिल होगा, और जो इसका ऐलान करेगा ना वो दोज़ख में जाएगा। अब जो है वो ऐलान भी नहीं कर सकते, कोई ऐलान करे तो कैसे करे। एक तरफ आपने कहा जो नमाज पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा, और साथ ही ऐलान कर दिया जो इसका ऐलान करेगा वो दोज़ख में जाएगा। अब ऐलान कौन करे, किसकी मजाल। अब सुबह का वक्त आया, फजर का वक्त हुआ, गौसे पाक मुसल्ले पे चढ़े। ये सदरी वाक़या ना, इसका हवाला नहीं मिलता कहीं पर। जहाँ बुजुर्गों ने नकल किया उन्होंने भी यही कहा कि हमें हमारे शेख ने बयान किया, उनको फलां ने बताया। इस तरह ये ना सीना दर सीना आगे नकल होता आया है। तो कहा जब गौसे पाक आए ना सुबह मुसल्ले पे आके देखा मस्जिद भरी हुई है, खचा खच अवाम ही अवाम, अवाम का समंदर, मस्जिद अंदर, बाहर मैदान में लोगों का हुजूम है। गौसे पाक हैरान हो गए, ऐलान किसने किया। गरीब नवाज खड़े हो गए, कहा जी मैंने ऐलान किया है। कहा मैंने ऐलान किया। कहा क्यों। कहा हुजूर मैंने सोचा अगर मैं अकेला ही जहन्नम में जाता हूँ, हुजूर की बाकी उम्मत तो जन्नत में चली जाएगी, हुजूर की बाकी उम्मत तो जन्नत में चली जाएगी। मैंने सोचा कि हुजूर की उम्मत जन्नत में चली जाए, मेरी खैर है, मेरी खैर है, इसलिए आपको गरीब नवाज कहा जाता है। गरीबों को आपने नवाजा ही बड़ा है। लेकिन उलमा ने लिखा कि यहाँ पर यह नहीं है कि आपने जो ऐलान किया कि जो ऐलान करेगा वो दोज़ख पे जाएगा, ये एक डराने के लिए था। जिस तरह बाप कहता है ना बेटे से, अगर तूने फलां काम किया तेरी टांगे तोड़ के रख दूंगा। कोई बाप तोड़ता है बेटे की टांगे? नहीं, डराने के लिए गया था। आप अपनी जो है मोमिनाना फिरासत से जान गए थे, डराने के लिए। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला आपने इसलिए ऐलान कर दिया था। ये बुजुर्गों की बातें हैं। बहरहाल औलिया को अल्लाह ने बड़ी शानों और बड़ी अजमतों से नवाजा है। आखिरी 10 मिनट में निकाह और शादी के हवाले से चंद बातें अर्ज करके बयान को समेटता हूं। अब गौर करें, कोई जिंदगी का गोशा ऐसा नहीं है जो इसने तिश्ना छोड़ा हो, हमारी रहनुमाई ना की हो। उठना कैसे है, बैठना कैसे है, बात कैसे करनी है, चलना कैसे है, किसी से कलाम कैसे करना है, कारोबार कैसे करना है, शादी कैसे करनी है, शादी के मामलात कैसे डील करने हैं, शादी के बाद की जिंदगी में हमारा किरदार क्या होना चाहिए, सारे मामलात हमें इस्लाम ने सिखाए हैं। कोई भी एक पहलू ऐसा नहीं है जिस पर हमें रहनुमाई इस्लाम से न मिलती हो। गौर करें, पड़ोसियों से कैसे ताल्लुकात रखने हैं ये भी कुरान ने बताया है, मुस्तफा के फरमान ने बताया है। हर चीज, जब छोटी से छोटी चीज के बारे में इस्लाम ने रहनुमाई की है तो बड़ी के बारे में तो इस्लाम ने वैसे ही रहनुमाई की होगी। इस्लाम हमारा एक कामिल अकमल मुकम्मल दीन है। निकाह ये आका की सुन्नत है। आका फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है, और जो बंदा मेरी सुन्नत से प्यार करता है ना वो कयामत के दिन मेरे साथ ही होगा। और निकाह के फजाइल के हवाले से 20 अहादीस मुबारका है। आका फरमाते हैं कि कसरत से निकाह करो, कसरत से निकाह करो। और एक रिवायत का मजमून ये भी मिलता है कि कल बरोसे कयामत में अपनी उम्मत की कसरत पे फख्र करूंगा, उम्मत की कसरत पे फख्र करूंगा। मेरी उम्मत अगर ज्यादा होगी कल बरोसे कयामत में इस पे फख्र करूंगा। और याद रहे
اللہ نے نا اس دنیا میں کئی طرح کی مخلوقات پیدا کی ہیں، انسان بھی ہے، چرند پرند بھی ہیں، جانور چوپائے وغیرہ کئی طرح کی مخلوقات ہے نا۔ پھر ہر مخلوقات کا ایک الگ درجہ ہے۔ پھر شہوانی جو جذبات ہیں، شہوت جو ہے یہ اللہ نے تقریباً مخلوقات میں رکھی ہے۔ آپ دیکھیں جانور کے اندر شہوت ہے، عقل نہیں ہے، شہوت ہے عقل نہیں ہے۔ انسان کے اندر کیا ہے؟ انسان کے اندر شہوت بھی ہے، عقل بھی ہے، اور انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ اس لیے جب یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ اعلیٰ قسم کا بندہ ہے، یہ اعلیٰ قسم کی مخلوق ہے، تو شہوانی جو جذبات ہیں ان کی تکمیل کے لیے ایک بڑا ہی خوبصورت نظام رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ نکاح کا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس نکاح کے انتظام کو اپنائے گا، اس نظام کو اپنائے گا، تو وہ خوبصورت انداز میں شہوانی جذبات کی تکمیل کر رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس سے ہٹے گا، نکاح کے بغیر اس طرح کے جذبات کی تکمیل کرے گا، تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ جانوروں میں نکاح کا کوئی تصور نہیں ہے نا۔ جانوروں میں اللہ نے نکاح کو کیوں نہیں رکھا؟ کیوں کہ جانور ایک ایسی مخلوق ہے جو اشرف المخلوقات نہیں۔ فرمایا انسان اشرف المخلوقات ہے، تو طریقہ بھی اس کے لیے کیسا رکھا؟ اعلیٰ قسم کا طریقہ رکھا، اعلیٰ قسم کا انتہائی پاک باز جو ہے وہ طریقہ رکھا، اور وہ نکاح کا طریقہ ہے۔ اسلام نے ہمیں نکاح کے بارے میں بتایا، اور نکاح کے بارے میں قرآن کی تعلیمات کیا ہیں؟ فرمایا قرآن کے اندر یہ ہے کہ 2 بھی نکاح کر سکتے ہو، 3 بھی، 4 بھی، لیکن آگے قرآن کی ایک صریح نص موجود ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ کہا اگر تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ تم بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کر سکو، تو پھر انسان بنو، ایک ہی نکاح کرو، فواحدہ، پھر ایک ہی نکاح کرو۔ یہ قرآن کا واضح لفظوں میں اعلان ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلیں، آقا علیہ السلام نے صرف ایک شادی نہیں کی، 2 نہیں کی، 3 نہیں کی، بلکہ 11 شادیاں کی ہیں آقا علیہ السلام نے۔ عملی طور پر، قولی طور پر آقا نے ہمیں بتایا کہ شادی کے بعد میاں تم نے زندگی گزارنی کیسے ہے۔ شادی کے وقت نا انسان کی ایک الگ کیفیت ہو جاتی ہے، اور شادی کے بعد کی زندگی میں اس کو کئی سارے، شروع کے 2 سال تو ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو کئی سارے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، جیسے ساس بہو کا معاملہ ہے۔ یہاں پر بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اب وہ لڑکی جو میرے لیے ساری دنیا چھوڑ کے آئی ہے، اور ایک وہ عورت جو میری ساری دنیا ہے، ان کی آپس میں نہیں بن رہی، تو مرد پریشان ہو جاتا ہے، اب میں نے کیا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اور کافی سارے مراحل ہیں، جوائنٹ فیملی کا الگ معاملہ ہے، اگر تنہا رہتے ہیں تو وہاں الگ معاملہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے نا ایسے ہمیں فرامین بتائیں، بندہ غور کرے نا عقل تنگ رہ جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام کے فرامین بندہ پڑھ کے دیکھے، آپ دیکھیں آقا علیہ السلام نے ڈائریکٹ میاں اور بیوی کو کم سمجھایا ہے، تیسرے بندے کو زیادہ سمجھایا ہے۔ فرمایا لعنت ہے اس مرد پر جو شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکائے، لعنت ہے اس عورت پر جو بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکائے۔ آخرکار تیسرے بندے کو کیوں سمجھایا؟ کیونکہ عموماً نا میاں بیوی میں لڑائی تیسرے بندے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میاں بیوی میں لڑائی تیسرے بندے کی، تم نے میری بہن کے ساتھ جو ہے وہ اچھا رویہ نہیں رکھا، تم نے میرے بھائی کو اچھا موڑ نہیں دیا، تم نے میرے والدین کی تعظیم نہیں کی، اس طرح کے معاملات کی وجہ سے جو ہے وہ گھر کے اندر لڑائی ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ مرد کو چاہیے عورت کو سمجھے، عورت کو چاہیے مرد کو سمجھے۔ مرد کو کس چیز کا حکم دیا؟ برداشت کرنے کا، برداشت کرنے کا، صبر کرنے کا حکم دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، کہا کہ مرد اگر اس بات کو جان لینا کہ جو میری بیوی ہے اس کے اندر عقل جو ہے وہ میرے مقابلے میں کم ہے، کیونکہ وہ عورت ہے، اور عورت کے بارے میں قرآن و احادیث روایتیں اس پر شاہد ہیں کہ عورت ناقصات العقل ہے۔ جب اس کے پاس عقل اتنی ہے ہی نہیں تو تم مجھ سے بحث کیوں کر رہے ہو؟ تم مجھ سے بحث کیوں کر رہے ہو؟ تو ہمیں اسلام نے بڑی خوبصورت تعلیمات دی ہیں۔ آقا نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ جس کا رویہ، جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور جان لو تم سب سے زیادہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ آقا علیہ السلام کا انداز کیسا تھا؟ ہمارے ہاں تو ایک الگ انداز ہوتا ہے نا، آقا نے عمل کر کے دکھایا، صرف بتایا نہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ رویہ اچھا رکھو۔ میاں ہم سے تو ایک نہیں سنبھالی جاتی نا، ہمارا تو حال یہ ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی 11 شادیاں تھیں۔ آقا علیہ السلام کا جب ظاہری وصال ہوا نا، 11 کی 11 ازواج کا کہنا کیا ہے، آپ ان کی سیرت کو پڑھ کر دیکھ لیں کہ آقا نے کبھی ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں کی۔ ساری کی ساری ازواج آقا سے خوش تھی۔ آقا علیہ السلام نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھا۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ ہم نے آقا کی سیرت سے کیا سیکھا؟ کہا کہ عورت کو پیار سے سمجھاؤ، اگر اس کے اندر 100 آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، کہا اگر اس کے اندر کچھ خامیاں ہیں نا تو کچھ خوبیاں بھی تو ہوں گی نا جو تمہیں پسند ہوں گی، کچھ خوبیاں بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہوگی۔ تو کہا کہ خامیوں کو سائڈ پہ رکھو، خوبیوں پہ تم نظر رکھو، خوبیوں پہ نظر رکھو۔ ایک جو ہے وہ ماہر نفسیات کا واقعہ پڑھ رہا تھا، اس کے پاس ایک بندہ آیا،
کہنے لگا کہ میں آج کل بڑا پریشان ہوں، گھر پہ جاتا ہوں تو بیوی کی شکل دیکھتا ہوں تو میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس نے اس کو ایک نسخہ بتایا، وہ اس کو سمجھ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ تم گھر جاؤ نا، جب تم اس بار گھر جاؤ تو تم ایسا کرنا جیسے دروازہ کھلے نا مسکرا دینا۔ جیسے اس کے گھر کا دروازہ کھلا وہ بندہ مسکرا پڑا، جیسے وہ مسکرایا اس کی بیوی بھی ہوش ہو گئی۔ اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا جب سے میری شادی ہوئی ہے میں نے پہلی بار شوہر کو مسکراتے دیکھا ہے۔ تو ایسا بھی نہ کیا جائے نا کہ بندہ اپنا رویہ ہی انداز الگ بنا لے۔ کہا بیویوں سے محبت کرو، یہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات، ان کے پاس عقل اتنی نہیں ہے۔ اور بالخصوص شادی کے جو 2 سال ہے نا، شادی کے بعد کے 2 سال، یہ مکمل طور پر بیوی کو جو ہے وہ ادب و احترام میں مکمل دیا جائے اور اس کا مکمل طور پر خیال رکھا جائے، کیونکہ اس کو جوائنٹ فیملی میں سیٹ ہوتے 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 ساس سسر اور دیوروں کے مزاج کو سمجھتے سمجھتے تقریباً اتنا ٹائم پیریڈ چاہیے ہوتا ہے کہ 2 سال میں وہ سب کو سمجھ لیتی ہے۔ آپ دیکھیں شادی کے بعد عموماً گھر میں جو جھگڑے ہوتے ہیں نا وہ 2 سالوں تک ہی ہوتے ہیں، اس سے کم تک 2 سالوں کے بعد جھگڑے نہیں ہوتے، کیونکہ بہو ساس کو سمجھ چکی ہوتی ہے، ساس بہو کو سمجھ چکی ہوتی ہے۔ جب وہ ایک دوسرے کو سمجھ لیتی ہیں تو اب لڑائی جھگڑے جنم ہی نہیں لیتے، معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رہے گھر میں نا دین کو داخل کیا جائے، دین کو داخل کیا جائے۔ جب تک گھر میں دین نہیں آئے گا اس وقت تک جو ہے وہ ہمارے گھر کے اندر سکون نہیں آ سکتا۔ جب بیوی کو شوہر کے حقوق کا ہی پتہ نہیں میاں تو وہ کیسے شوہر کے حقوق ادا کرے گی؟ اور جب شوہر کو بیوی کے مقام کا ہی پتہ نہیں ہے وہ کیسے ادا کرے گی؟ ہماری سوسائٹی کا عالمیہ پتہ کیا ہے؟ شوہر نے اپنے پاس وہی کلپ رکھا ہوتا ہے جس میں شوہر کے حقوق بیان کیے گئے ہوتے ہیں، اور بیوی نے بھی اپنے پاس وہی اخبار کے ٹکڑے رکھے ہوتے ہیں جس میں بیوی کا مقام بیان کیا گیا ہوتا ہے۔ حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہونا چاہیے تھا، اور بیوی کو چاہیے تھا وہ شوہر کے حقوق جانتی، اور شوہر کو چاہیے تھا وہ بیوی کے حقوق کو سمجھتا۔ آقا علیہ السلام نے دونوں کو حکم دیا، فرمایا کہ مرد کو چاہیے اپنے اندر برداشت پیدا کرے اور بیوی کی باتوں کو سمجھے اور اس پر برداشت کرے، صبر سے کام لے۔ اور عورت کو سمجھایا کیا؟ فرمایا اگر میں خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز قرار دیتا، بیوی کو حکم دیتا وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ بیوی کو بار بار سمجھایا تیرا شوہر بیمار ہو جائے اور اس کے جسم سے پیپ بہنے لگے اور تو اس کو اپنی زبان سے چاٹ بھی لے تب بھی تو اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتی۔ شوہر کا یہ مقام بیوی کو بتایا گیا، تو بیوی کو شوہر کا مقام پتا ہو، اور شوہر کو صرف شوہر کا ہی نہیں، شوہر کو بیوی کا مقام پتا ہو کہ یار بیوی کا درجہ کیا ہے۔ آقا علیہ السلام گھر پہ آئے، حضرت عائشہ کی طبیعت خراب ہے، حضرت عائشہ کی طبیعت خراب ہے۔ آقا نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ آقا سر میں درد ہے۔ فرمایا عائشہ گھبراؤ نہیں، ایسا کرو آٹا میں گوندھ دیتا ہوں، روٹی تم بنا لینا۔ کائنات کے والی ہیں، سرور انبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ انداز دیکھیے، ہمارے ہاں کوئی آٹا تو کوئی نہیں گوندتا، صرف پیار سے بات ہی کرنا تو لوگ آدھر رن مرید ہیں، یعنی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن غور کریں یار، آقا علیہ السلام کا عمل ہمارے سامنے ہے، آقا نے ایک عملی طور پر پریکٹیکل کر کے بتایا۔ اس کو رن مریدی نہیں کہا جاتا، اس کو پیار محبت کہا جاتا ہے، الفت و چاہت کا رشتہ۔ یہ ایسا مبارک رشتہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان پیدا کروایا۔ حدیث پاک ہے، فرمایا 2 محبت کرنے والے مرد اور عورت کے لیے نا شادی سے بہترین کوئی ذریعہ نہیں ہے، ورنہ اگر وہ محبت ہے تو اس محبت پہ لعنت ہے، لیکن اگر وہ محبت نکاح میں تبدیل ہو جاتی ہے تو اب وہ محبت کا بہترین ذریعہ بن گیا۔ وگرنہ غیر محرم سے تعلقات رکھنا وہ تو حرمت کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن غور کریں آقا علیہ السلام نے ہمیں کس انداز میں سمجھایا۔ آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ عائشہ آٹا میں گوندھ دیتا ہوں، روٹی تم بنا لینا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور والدین کا بھی بڑا مقام ہے، لیکن یہ ایسا نہیں کہ بندہ شادی کے بعد والدین کے مقام کو اگنور کر دے۔ مرد کو چاہیے حکمت عملی سے کام لے۔ یہاں پر جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر فیل ہو جاتے ہیں، جذبات میں آنے والے۔ ادھر بیوی کی بات سنی تو ماں پہ جا کے غصہ نکال دیا، ماں کی بات سنی تو بیوی پہ جا کے غصہ نکال دیا۔ جو جذباتی بندہ ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کو خیال آتا ہے یار یہ میں نے کیا کر دیا ہے، یہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ تو جذباتی بندے کو اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھنا پڑتا ہے۔ ماں باپ کو اللہ نے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اس معاملے میں بسا اوقات شادی کے فوراً بعد ماں پر بھی غصہ آنے لگتا ہے کہ میری ماں میرا گھر نہیں بسنے دے رہی، اس لیے ماں باپ کو بھی اسلام نے سمجھایا جب تم نے ان کی شادی کر دی ہے خدا را ان کے ذاتی معاملات میں انٹرفیئر مت کرو، ان کو اپنی زندگی گزارنے دو جیسے گزارتے ہیں گزارنے دو۔ اس لیے ہمارے اسلام نے ہماری یہ تعلیمات دی ہیں ہمیں، اور ماں باپ کا مقام بھی اسلام نے ہمیں بتایا۔ ایک طرف باپ کے بارے میں صحابی نہیں آئے تھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں سارا دن کام کرتا ہوں، میرا باپ میرا سارا مال اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام جذبات میں آ گئے، جلال میں آ گئے، فرمایا تو یہ کیا کہہ رہا؟ فرمایا انتا ومالک لیابیک، فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا اپنے والد کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رہے دنیا والوں کو ہمیشہ یہ بتاؤ کہ میں جو کچھ بھی ہوں نا اپنے والد کی بدولت ہوں،
मैं अपने वालिद की बदौलत हूं। तुम्हारे वालिद को जब ये बात पता चलेगी ना, उसका सीना चौड़ा हो जाएगा। वो मोहल्ले के बुजुर्गों में जब बैठेगा ना, सीना तान के कहेगा, आज भी मेरा बेटा मुझसे मशवरा किए बगैर कोई काम नहीं करता। ये जो उम्र होती है ना, इस उम्र में बच्चों की बड़ी जरूरत होती है। वालिद को ये बड़ी लगन होती है, उसकी कोशिश होती है कि उसकी औलाद उसके पास आकर बैठे। इसलिए उलमा ने कहा, अगर तुम कोई काम करते हो और तुम्हारा बाप बूढ़ा हो चुका है, फरमाया तब भी अपने बाप से जाके मशवरा कर लिया करो, करो वही जो तुमने करना है। लेकिन बाप से मशवरा करोगे ना, तो उसके जज्बात, उसके एहसासात बुलंद हो जाएंगे। यार मेरा बेटा आज भी मुझसे जो है वो मोहब्बत करता है, का बाप की भी कदर करो, क्योंकि जो बाप होता है ना, ये हमारे इस दुनिया में आने का सबब भी है। और जब तक बाप जिंदा होता है ना, औलाद के पास बहुत कुछ होता है। जैसे ही बाप का साया उठ जाता है ना, औलाद के पास जितना मालो दौलत भी आ जाए ना, बाप की कमी को वो पूरा नहीं कर सकते। ये वो लोग समझ सकते हैं जिनके वालिद के इस दुनिया से इंतकाल हो गया है। अल्लाह करीम, यहाँ पर जितने हाज़रीन बैठे हैं जिनके वालिद के इस दुनिया से जो है इंतकाल हो चुका, अल्लाह करीम उन तमाम की कब्रों पर अपनी खसूसी रहमतों के अनवार को नज़ुल फरमाए। और वालिदा की तो फिर अपनी शान है। आका अलैहिस्सलाम ने बारहा कई मकामात पर वालिदा के मकाम को बयान फरमाया है कि वालिदा कौन है, कि वालिदा वो है जिसके कदमों तले तुम्हारी जन्नत है। बाप कौन है, कहा ये जन्नत का दरमियानी दरवाजा है। दोनों के मकाम को आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है। और फिर हर जगह से फिर वालिदा का किरदार नजर आता है। आप देख लें, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह हो, गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह हो, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि तआला अलैह हो, हर जगह उनकी वालिदा का किरदार ही नजर आता है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की वालिदा थी ना, जिन्होंने बेटे की तरबियत की थी। बेटा जो बच्चा नमाज पढ़ता है, अल्लाह शकर की पुड़िया अता फरमाता है। ऐसी तरबियत की थी, ऐसे नमाजी बने, ऐसे नेक बने। माँ ने ही कहा था ना, अब्दुल कादिर, जिंदगी में जैसा भी मामला आ जाए कभी झूठ मत बोलना। आपने झूठ नहीं बोला था, आपके सच की बरकत से उधर काफिला था, पूरे डाकुओं का काफिला था, वो सारे का सारा तौबा ताइब हो गया था। ये वालिदा का बड़ा किरदार रहता है। वालिदा को भी चाहिए कि अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करे। अबू दौला एक शायर गुजरा है, उसने अपने बच्चों को बुलाया और उसने कहा था, बच्चों मैंने तुम पर बचपन में भी एहसान किया, जब बड़े हो गए तब भी एहसान किया, जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब भी तुम पर एहसान किया। बच्चों ने कहा, बाबा तुमने हम पर पहले कौन सा एहसान किया, जब हम पैदा ही नहीं हुए थे तब कौन सा एहसान, ये तो बनता ही नहीं। तो बाप ने कहा था, बेटे मैं शायर था, मेरे मिजाज में ये था कि मैं किसी हसीना से शादी करता, लेकिन जब मैंने निकाह किया ना, तो मैंने ये सोचा कि मैं शादी उस औरत से करूं जो कल को मेरे बच्चों की अच्छी माँ भी बन सके, उनकी अच्छी तरबियत भी कर सके। इसलिए जो मेरा तुम पर एहसान नहीं, तुम्हारे पैदा होने से पहले का है। लिहाजा दीनदारी को तलाश किया जाए। बसा औकात कई लोग शादी के हवाले से ऐसी औरत या ऐसी लड़की को तलाश करते हैं जिसका बैकग्राउंड बड़ा मजबूत हो, मालदार हो, ताकि कुछ जमीन जो है वो मेरे कब्जे में भी आ जाए, मैं भी थोड़ा अमीर हो जाऊं। याद रहे, हदीस पाक में आता है, आका फरमाते हैं, जो बंदा किसी औरत के पैसे और माल को देख के शादी करता है ना, अल्लाह उसको शादी के बाद खरीद कर देता है। अल्लाह तो अला कुल्ली शैइन कदीर है ना, वो जिसको चाहे जो चाहे अता कर दे, जिससे चाहे जो चाहे ले ले। आका की हदीस है, फरमाया अगर कोई माल की वजह से शादी करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको शादी के बाद गरीब कर देता है। और अगर कोई बंदा किसी औरत के हसब नसब और उसकी इज्जत, मकाम, लेवल, स्टेटस को देखकर शादी करता है कि यार इसका माशरे में बड़ा मकाम है, इससे शादी करूंगा तो लोग कहेंगे कि यार इसने बड़े आला खानदान में शादी की है। फरमाया जो इस वजह से, इज्जत की वजह से शादी करता है कि इसकी इज्जत बड़ी है इसलिए मैं इससे निकाह करूं, अल्लाह पाक शादी के बाद उसको रुसवाई में तब्दील कर देता है। लिहाजा शादी का मया जो इस्लाम ने बताया, कहा कि दीनदारी को देखो, जिससे तुम निकाह कर रहे हो उसका दीन कैसा है, उसके अखलाक कैसे हैं। और लड़की वालों को, बेटी वालों को भी इस्लाम ने बताया, कहा कि जब तुम ऐसा लड़का देखो जिसका दीन अच्छा है, जिसके अखलाक अच्छे हैं, तुम उससे अपनी बेटी का निकाह कर दो, अल्लाह तबारक व तआला खुशियां उन बच्चों का मुकद्दर फरमा देगा। अल्लाह करीम हम सबको इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आपको ये इल्म होगा कि आपके इसी जतोई शहर के अंदर जामिअतुल मदीना भी है, मदरसा मदीना भी है, ज़ेर तामीर भी है, मस्जिद भी है। आप तमाम इस्लामी भाइयों से दजा है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने माल अता फरमाया है, लाज़मी तौर पर ताउन भी करें। और हदीस पाक में आता है ना, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मस्जिद बनाता है, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके लिए घर बना देता है। अब घर बंदा तो मस्जिद बनाने से रहा, आका अलैहिस्सलाम ने इस हदीस पाक की शरह में लिखा गया, फरमाया जो मस्जिद में ईंट भी लगा देगा, मस्जिद में कोई चंदा भी दे देगा, अपना हिस्सा भी मिला देगा, अल्लाह उसका भी घर जन्नत में बना देगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के हाथ तो कमी नहीं है ना, ये कमी जो है ज्यादती का मामला या पैसे ज्यादा या कम होने का मामला, ये तो मखलूक के हाथ है ना, खालिक के हाथ तो नहीं है। खालिक के हाथ तो नहीं है। एक बंदा जो है वो 5 करोड़ रुपया दे देता है,
उसकी नीयत ये है कि लोग कहें वो सेठ साहब ने कमाल कर दिया, वो चौधरी साहब ने कमाल कर दिया। और एक बंदा 10 रुपए छुपा के दे देता, इस साथ से देता, इसको भी पता नहीं लगता। अल्लाह इसको जो अजर अता फरमाएगा ना, वो इसी को ही अता फरमाएगा। इसने 5 करोड़ दिया है लोगों को दिखाने के लिए, कल बरोज़े क़यामत पुराने कपड़े में लपेट के उसके मुंह पे मारा जाएगा और कहा जाएगा जिसके लिए किया था उससे जाके अजर ले ले। अब तमाम इस्लामी भाइयों से इल्तिजा है कि अपनी हैसियत और वुसअत के मुताबिक लाज़मी तौर पर इस कार्य खैर के अंदर हिस्सा मिलाएं। अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। और जो मैंने चंद बातें आपके सामने रखी हैं, शान अंबिया के हवाले से भी, शान औलिया के हवाले से भी, सहाबा के हवाले से भी और निकाह के हवाले से भी, अल्लाह करीम हम सबको इन पर अमल पैरा होने की तौफीक रफीक अता फरमाए। सैयद आला हज़रत के हवाले से 2 बातें करूंगा क्योंकि वक्त ज्यादा हो चुका है। अल्लाह करीम हम इमाम अहमद रज़ा खान नव्वरल्लाहु बरकता, ये वो अजीम हस्ती हैं जिन्होंने अपने दौर में जो काम किया है ना, आपके दौर में कोई और इस तरह का काम नहीं कर सका। आपके कलम की नोक से निकले हुए एक एक लफ्ज का आज तक कोई बदमज़हब जवाब नहीं दे सका। आपके दौर में जो फितने खड़े हुए ना, लोगों को जिस अंदाज में गुमराह किया गया, वो ऐसी बातें थी कि लोग वाकईतन गुमराह हो गए और ऐसी लॉजिक से लोगों को गुमराह किया गया। आप देखें इन्हीं का दौर था, लोगों से कहा गया कि नमाज के अंदर अगर चौपाए का, घोड़े का, गधे का माज़अल्लाह ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं टूटती, लेकिन आका का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। लेकिन इसको एक लॉजिक के साथ बताया गया, कहा देखो अल्लाह की ताज़ीम है नमाज में, नमाज के अंदर अल्लाह के अलावा किसी और की ताज़ीम नहीं की जाएगी, जो चीज मुअज़्ज़म हो। आका अलैहिस्सलाम चूंकि इनकी ताज़ीम की जाती है, आपकी शान बुलंद बाला है, लिहाजा नमाज में अगर इनकी ताज़ीम की जाएगी तो गैरुल्लाह की ताज़ीम है, लिहाजा नमाज टूट जाएगी। लेकिन जो गधे हैं, चौपाए हैं, जानवर हैं, इनकी तो वैसे कोई इज्जत नहीं है, कहा इनका ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं टूटती। इस तरह के कई फितने खड़े हुए, लेकिन मेरे इमाम ने जिस अंदाज में इन फितनों का कला कमा किया है वो अपनी मिसाल आप है। आपका कलम उठा, आपने दलाइल काहिरा, बाहिरा, ज़ाहिरा, आपने अंबार लगा दिए। आपने दुनिया वालों को बताया कि लोगों तुम ये कहते हो आका का ख्याल आ जाए नमाज टूट जाती है, हमारा मानना ये है जब तक मुस्तफा का ख्याल ना आए नमाज मुकम्मल नहीं होती। आपने हदीसों के अंबार लगा दिए। तो तुमने हदीस नहीं पढ़ी, सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे थे, सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे थे, आका अलैहिस्सलाम बीमार थे, आका अलैहिस्सलाम बीमार थे, हवा का झोंका आया, पर्दा हटा, आका का चेहरा दिखा, सहाबा ने नमाज के आलम में आका का चेहरा देखा, नमाज के बाद बयान किया, आका का चेहरा ऐसे लग रहा था कान्नहु वरक़त मुसहफ़, जैसे कुरान की सूरह वद्दुहा खुली हुई हो। तुम कहते हो आका का ख्याल आ जाए नमाज टूट जाती है, सहाबा तो नमाज के आलम में आका को देख भी रहे थे, तक भी रहे थे, नमाज के बाद बयान भी कर रहे थे। ये थे मेरे सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान। आज बहुत सारी बातें हैं जो लोगों ने हमारे खाते में डाल दी हैं, वगरना सैयदी आला हज़रत को जिसने पढ़ा है ना वो समझ सकता है। इमाम अहमद रज़ा को यहाँ मालूम नहीं थे, आज लोग जाके मज़ारों पे सजदा करते हैं, चूमने लग जाते हैं और तरह तरह के गैर शरई काम करते हैं, लोग उठा के हमारे खाते में डाल देते हैं और लोगों ने पढ़ा ही नहीं। और इमाम अहमद रज़ा की सोच क्या है और फिक्र रज़ा क्या है। आपसे पूछा गया किबला कब्रों का तवाफ करना कैसा, आपने कहा हराम है। आपसे पूछा गया कब्रों को सजदा करना, आपने फरमाया हराम है। कब्रों को चूमना का जायज तो है, लेकिन बेहतर यह है कि इससे भी बचा जाए। आपने कब्रों को चूमने से भी मना किया, कब बेहतर यह है कि कब्रों को चूमा भी ना जाए। लोग क्या कहेंगे, यार हिंदू भी यही करते थे, तुम भी यही करने लगे हो, वो बुतों को चूमते थे, तुम कब्रों को चूम रहे हो। ये थी इमाम अहमद रज़ा की सोच। लेकिन आज कुछ जाहिल लोगों की वजह से हम पर तरह तरह की बातें कर दी जाती है। हाँ, अगर किसी का इश्क बिलाल हबशी के लेवल का है, सिद्दीक अकबर के लेवल का है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के लेवल का है, कोई बंदा जाके चूमे, समझ में भी आता है। जब आका गजारी विसाल हुआ ना, बिलाल हबशी मदीना छोड़ के चले गए, आका ख्वाब में आए, बिलाल ऐसी बेवफाई यार, मदीना छोड़ के चले गए, दिल भर आया। सुबह सुबह उठे, भागते भागते, दौड़ते दौड़ते आका के रोजे पे आए, आका अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर से मिट्टी उठाते, सीने पे लगाते, माथे पे लगाते, आका के रोजे को बोसा देते। ये थी बिलाल हबशी की कैफियत। अब बिलाल हबशी बोसा देना समझ में भी आता है कि यार उनकी कैफियत ही ऐसी थी, रोते रोते आ रहे हैं। और इधर हाल ये होता है कि बंदा जो है वो कब्र पे खड़ के, मजार पे खड़ के दुआ मांग रहा होता है, साथ वाले को मोबाइल दिया होता है, यार मेरी मूवी बनाना, मेरी तस्वीर बनाना। अब यहाँ पर बंदा बताए कि यहाँ पर इखलास का तो नामो निशान ही नहीं है, और बंदा कहे नहीं जी मैं भी कब्र को चूमूंगा। तो ये आला हज़रत के जो नजरियात थे ना, आपने दुनिया वालों को ना अपनी तबीयत के पीछे नहीं बल्कि शरीयत के पीछे चलाया है, शरीयत के पीछे चलाया है। और ऐसा चलाया है, ऐसा चलाया है कि जहां पर शरीयत की बात आती थी आप जलाल में आ जाया करते थे। आपके पीर खाने में एक बंदा ना कोई वो जो ले आया था सामान वगैरह जो है होता है जिससे गाने बाजे वगैरह बजाए जाते हैं, वो मज़ामीर ले आया, आप जलाल में आ गए। फरमाया तूने आका का फरमान नहीं सुना, आका ने फरमाया मैं इनको तोड़ने के लिए आया हूं और तू यहाँ बजाने के लिए आ गया।
आपने ये नहीं देखा कि मेरा पीर खाना, आपने फरमाया बात शरीयत की आएगी तो अहमद रजा जलाल में आ जाएगा। एक पीर को देखा कि उसने 2-3 अंगूठियां पहनी हुई थी, आप जलाल में आ गए, आपने उसको मना कर दिया, कहा हमारी शरीयत के अंदर सिर्फ एक अंगूठी पहनना जायज है, वो भी चांदी की, वो भी 4.5 माचे से कम, वो भी एक नग वाली। आपने दीन के मामले में किसी की जो है वो ऐसा नहीं कि सामने वाला नवाब है, आपने नवाबों की कोई रियायत नहीं की। सामने वाला पैसे वाला है, मेरा मदरसा बनवा देगा, चंदा दे देगा, लिहाजा इसको शरीयत का मसला ना बताओ, नहीं। आप बैठे हैं घर के अंदर, एक बहुत बड़ा नवाब आ गया, दरवाजा खटखटा, आपने पूछा कौन का? फलां इलाके का नवाब हो। आपने फरमाया मेरे घर में तेरी शान के लायक सोफे ही नहीं है, बैठेगा कहाँ, लिहाजा मैं तुझसे नहीं मिल सकता। उसने कहा फिर कभी मेरे पास आइएगा। आपने फरमाया मैंने नवाबों के पास जाने के आदाब ही नहीं सीखे। ये आपका अंदाज था, नवाब के साथ आपका ये रवैया। और इधर एक यतीम बच्चा आया, गरीब का बच्चा आया, जब वो बच्चा आया ना, आकर कहने लगा मेरा बाप नहीं है, मेरी वालिदा ने कहा था बेटे ये थोड़ी सी दाल ले आना, अहमद रजा के पास चले जाना, उनको दावत दे देना, हो सकता है वो हमारे घर तशरीफ ले आए। आला हजरत ने अपने खलीफा से फरमाया इसके घर का एड्रेस नोट करो और पता करो इसका घर कहाँ है। अहमद रजा सर के बल चल के इसके घर पे जाएगा। ये थे इमाम मोहम्मद रजा, खलीफा आपका बयान करते हैं। इमाम मोहम्मद रजा 1 रोटी खाया करते थे, उस दिन बच्चे की दावत थी, आपने 2 रोटियां खाई। ये था अंदाज इमाम मोहम्मद रजा का। दुनिया वालों को आपने अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं बल्कि हुजूर की शरीयत के मुताबिक चलाया। आपके पास एक बंदा आया, यहाँ तक बाल रखे हुए थे, आपने फरमाया ये क्या है? वो जी मेरे पीर साहब ने रखे हुए। फरमाया ये शरीयत तेरे पीर की नहीं, ये शरीयत मुस्तफा करीम की है, ये शरीयत है मुस्तफा करीम की है। और इस शरीयत के अंदर यहाँ तक मर्द के लिए बाल है नाजायज और हराम है। जहाँ बात शरीयत की आ जाती थी, आप 2 टोक उसको बताते थे ये मामला शरीयत का यूं नहीं यूं है। आप रहमतुल्लाह तआला अलैहि की ये शांति, आपने सारी जिंदगी दीन का काम किया, तहरीर की सूरत में, तकरीर की सूरत में। अल्लाह ने आपको ऐसा नवाजा कि आज इतना अरसा गुजर चुका तब भी हम आपका जिक्र करते हैं। अल्लाह करीम हम सबको शरीयत के पीछे चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।